So welcome students for the video lecture of subject concrete technology. So today we will see unit 5 quality control of concrete and topic is 5.1.2 concreting operation. So today we will see compacting. Myself Rushali Mane, lecturer in Civil Department of Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Then vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Then mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Then develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission of the department: imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability. Then to develop social and environmental responsible civil engineers. And then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome: maintain the quality of concrete. Then unit outcome: explain the sequential operations of concreting in given situation. Then program outcomes: basic and discipline knowledge. Then design development of solutions, engineering tools, experimentation and testing. Then engineering practices for society sustainability and environment. Then project management, and then lifelong learning. Then what is compaction of concrete? So what do you mean by compaction? So compaction is the process that expels entrapped air from freshly placed concrete and packs the aggregate particles together so as to increase the density of the concrete. So compaction क्या होता है कि कंक्रीट में जो एयर है उसको बाहर निकालने के लिए कंक्रीट को पैक किया जाता है बाय मैनुअल और बाय मैकेनिकल मेथड्स, और ताकि पार्टिकल्स जो है वो डेंसली पैक्ड हो जाए और कंक्रीट की डेंसिटी इंक्रीज हो. कंक्रीट हॉलो नहीं रहना चाहिए, कंक्रीट पोरस नहीं बनना चाहिए, इसलिए कॉम्पैक्शन को करना ज़रूरी होता है. सो आप यहाँ देखोगे कॉम्पैक्शन किया जा रहा है बाय यूजिंग रॉड. देन compaction: the process of compaction of concrete consists essentially of the elimination of entrapped air from the concrete. तो जो भी concrete में air entrapped है उसको निकालने के लिए compaction किया जाता है. तो पुराने ओल्डेस्ट मेथड में क्या किया जाता था कि रॉडिंग, रैमिंग या और बाय वाइब्रेटिंग compaction किया जाता था. तो जो ऑब्जेक्ट है कंक्रीट का कि डेंस मास अचीव करना विदाउट एनी वॉइड्स, मतलब कंक्रीट जो है वो रेनफोर्समेंट के सराउंडिंग्स में पूरी अच्छी तरह से पैक हो जाना चाहिए, फॉर्म वर्क में पूरे कॉर्नर्स में पैक हो जाना चाहिए. देन कंपैक्शन से क्या होता है? स्ट्रेंथ बढ़ता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है और इम्परमेबिलिटी बढ़ता है कंक्रीट का. तो कंपैक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परमेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. देन each 1% less compaction reduces the strength of concrete by 5% on an average. तो मतलब compaction अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे concrete का strength उतना ही reduce होता जाएगा. तो मतलब compaction जब हम करते हैं तो मतलब considerable amount of air बाहर निकल जाती है concrete में से. Then purpose क्या है कि purpose क्या है कि monolithic concrete is created between the ends of the member, plan, joints or both. The formwork is completely filled to the intended level. Then the entrapped air is expelled. Air reinforcement, tendons, duct, anchorages and embedments are completely surrounded. Then specified finish to the formed surface of the member is provided. The required properties of concrete can be achieved. Then the process of compaction. तो कॉम्पैक्शन का प्रोसेस जो है वो 2 स्टेज में होता है. फर्स्ट स्टेज में क्या है? एग्रीगेट पार्टिकल्स को अच्छी तरह से कंसोलिडेट करके फॉर्म वर्क में फिल करके टॉप लेवल तक फिल किया जाता है. और सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है कि एंट्रैप्ड एयर को बाहर निकाला जाता है. तो ये जो प्रोसेस होता है ये रॉडिंग, रैमिंग, मैनुअल मेथड या बाय यूजिंग वाइब्रेटर किया जाता है. देन मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन कौन से? यूजुअली हैंड कॉम्पैक्शन और हैंड टैम्पिंग किया जाता है या मैकेनिकल कॉम्पैक्शन.
तो हैंड कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि ये एंशियंट मतलब पुराना मेथड है कॉम्पैक्शन करने का. देन रैमर्स एंड आयरन रॉड्स आर यूज फॉर दिस पर्पस. बाम्बू या आयरन रॉड यूज़ किया जाता है. देन मास कंक्रीट जो है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा के थिकनेस में कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए और लाइट रैमर से ही कॉम्पैक्ट करना होता है. देन रेनफोर्स कंक्रीट के लिए आयरन रॉड्स यूज़ होते हैं ताकि आयरन रॉड का थिकनेस कम होता है और रेनफोर्समेंट में थोड़ा कंजेस्टेड होने की वजह से कंक्रीट जो है वो पूरे कॉर्नर्स तक जाना चाहिए फॉर्म वर्क के, इसलिए आयरन रॉड्स यूज़ किए जाते हैं. देन थिकनेस जो है वो नॉर्मल जो थिकनेस होती है वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा, अगर स्लैब है तो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा का थिकनेस नहीं यूज़ होना चाहिए. कॉलम्स और कॉलम वगैरह जैसे वर्टिकल सेक्शन है तो 30 सेंटीमीटर तक एक स्ट्रेच में कॉम्पैक्शन किया जा सकता है. देन मोस्ट सेटिस्फैक्टरी compacting concrete properly is to consolidate each layer separately so that its top surface become level and fairly smooth before the next layer is placed. तो compaction जो है जैसे जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ज़्यादा हाइट वाले स्ट्रक्चर है, उनको लेयर्स में क्यों कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि नेक्स्ट लेयर जो हो वो उसके ऊपर जो इनिशियल लेयर है उसको स्मूथ किया जाता है और उस पर नेक्स्ट लेयर डाली जाती है और दोनों का बॉन्डिंग हो जाना चाहिए प्रॉपरली. देन टाइप्स ऑफ हैंड कॉम्पैक्शन फॉर कंक्रीट वर्क्स. तो कौन कौन से हैंड कॉम्पैक्शन के मेथड्स है? रॉडिंग, रैमिंग एंड टैम्पिंग. तो रॉडिंग में क्या होता है, रॉड इंसर्ट किया जाता है जो कंक्रीट को के अंदर जो एयर है उसको एक्सपेल आउट करता है. देन रैमिंग में मतलब रैमर होता है एक वुडन रैमर, तो वो रैमर से कंक्रीट को इवन स्मूथ सरफेस बनना चाहिए इसलिए रैमर घुमाया जाता है. और टैम्पिंग मतलब जनरली रैमर घुमाने के बाद अगर कंक्रीट इधर उधर डिस्प्लेस हो गया तो उसके ऊपर जो टैम्पिंग रॉड होता है, टैम्पिंग होता है एक टैम्प करके जो भी बचा एयर है सरफेस पे अगर कुछ है तो वो निकाली जाती है बाय टैम्पिंग. देन मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन. मैकेनिकल कॉम्पैक्शन, हैंड कॉम्पैक्शन हमने देख लिया, अभी मैकेनिकल कॉम्पैक्शन. तो मैकेनिकल कॉम्पैक्शन जो है कि मिक्सेस जो होते हैं बहुत स्टिफ होते हैं तो वो इजीली, अगर रिच मिक्स रहा तो वो इजीली वाइब्रेटर से या मैकेनिकल कॉम्पैक्शन से कॉम्पैक्ट हो जाता है. देन तो अगर कंक्रीट अगर वाइब्रेटर से अगर कॉम्पैक्ट किया तो क्या है वो मतलब जितना उसमें वाटर होता है उससे ज़्यादा वो वेट बिहेव करता है, जितना वाटर उसमें रिक्वायर मतलब इजीली कॉम्पैक्ट हो जाता है. अगर बोला जाए तो वाइब्रेटर से कंक्रीट जो है लेस वाटर में भी इजीली कॉम्पैक्ट हो जाता है. सो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होती है देन हैंड कॉम्पैक्शन. सो अगर कंक्रीट वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट किया गया तो रैपिड वाइब्रेशन होती है और इंक्रीजेज द फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट. तो वाइब्रेटर से रैपिड वाइब्रेशन देकर कंक्रीट की फ्लूइडिटी बढ़ाई जा सकती है. तो ड्यू टू अगर वाइब्रेटर अगर यूज़ किया तो स्टेबल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कंक्रीट और उसके अंदर का जो भी एयर है वो एक्सपेल आउट होकर डेंस और ड्यूरेबल कंक्रीट अचीव किया जा सकता है देन हैंड कॉम्पैक्शन. तो मैकेनिकल कॉम्पैक्शन में ये एक एडवांटेज होता है. देन फ्रीक्वेंसी, duration of vibration etc depends on the condition of vibration for compaction of the mix. Then advantages. Following are the advantages of compaction by vibrations. By use of vibration, stiff mixes can be compacted easily. Then for a given cement ratio, aggregate ratio, a much stronger and dense concrete can be produced. तो dense concrete produce किया जा सकता है by using vibrator. Then bond between reinforcement and concrete is improved. Then creep and shrinkage is reduced. Latency is also reduced to some extent. लेटेंस मतलब जो ब्लीडिंग के वक्त अगर कंक्रीट में ब्लीडिंग प्रॉपर्टी डेवलप हो गई तो ब्लीडिंग के वक्त जो सरफेस पे वाटर आता है उसके साथ सीमेंट पेस्ट भी होता है तो कुछ समय बाद वाटर इवापोरेट होकर सरफेस पे क्या बन जाता है, ड्राई सीमेंट रहता है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज लेटेंस. द स्पीड ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इज इंक्रीज.
then better finish is obtained. So then types of vibrators used for concrete compaction. तो ये जो दिख रहा है ये होता है नीडल वाइब्रेटर. सो इंटरनल वाइब्रेटर या नीडल वाइब्रेटर, क्योंकि ये वाइब्रेटर जो है वो अंदर कंक्रीट के अंदर इंसर्ट किया जाता है. सो यू कैन सी कौन सा करेक्ट मेथड है. तो इसको वर्टिकली इंसर्ट करना रहे, ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन में इंसर्ट करना इज नॉट गुड पोजीशन. देन these vibrators are inserted into the concrete and withdrawn after the compaction has completed. It is also known as immersion, poker or needle vibrator. The most effective type of vibrator as it comes into intimate contact with the concrete. तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड और जनरली यही यूज़ होता है, इंटरनल वाइब्रेटर ही यूज़ होता है कॉन्क्रीट कॉम्पैक्शन के लिए. देन प्रिकॉशंस, जब इंटरनल वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है तो उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो फॉलो करना ज़रूरी है. सो टू प्रिवेंट एनी लीकेज ऑफ मॉर्टर द फॉर्म वर्क शुड बी एज टाइट एज पॉसिबल. फॉर्म वर्क टाइट होना ज़रूरी है. थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट लिफ्ट शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर. मतलब कॉन्क्रीट अगर थिकनेस अच्छी है तो ही इंटरनल वाइब्रेटर से वो कॉम्पैक्ट हो सकेगा, अदरवाइज नहीं. देन फॉर लिफ्ट्स मोर देन 50 सेंटीमीटर्स इंटरनल वाइब्रेटर शुड नॉट बी यूज. मतलब 50 सेंटीमीटर्स के ऊपर अगर है थिकनेस तो इंटरनल वाइब्रेटर नहीं यूज़ करना चाहिए. द वाइब्रेटर शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली बाय इमर्जिंग द वाइब्रेटर फ्रॉम 5 to 15 सेकंड्स एट अ पॉइंट. एक पॉइंट से 5 से 15 सेकंड तक ही रखना है. इट शुड बी वर्टिकली इमर्स एंड शुड रिमेन इन वर्टिकल पोजिशन थ्रू आउट द वाइब्रेशन. देन वाइब्रेटर शुड नॉट बी यूज टू पुश कॉन्क्रीट लैटरली. मतलब कॉन्क्रीट को ढकेलना नहीं है वाइब्रेटर के हेल्प से, उसको बस इंसर्ट करना है, नहीं तो क्या होगा, सेग्रीगेशन. देन वाइब्रेशन शुड बी विड्रॉन स्लोली. उसको निकालना धीरे से है और ऑन पोजीशन में ही निकालना है. देन इट शुड बी इमर्स थ्रू द फुल डेप्थ ऑफ फ्रेशली लेड कॉन्क्रीट. देन वाइब्रेटर neither should touch the inside of formwork nor the reinforcement. फॉर्मवर्क और रेनफोर्समेंट को नहीं टच होना चाहिए, अदरवाइज क्या करेगा, वो फॉर्मवर्क की पोजीशन को डिस्टर्ब करेगा. मतलब उसके अंदर के नेल्स निकल सकते, क्योंकि वाइब्रेट करता है. वाइब्रेशन से रेनफोर्समेंट भी अपनी पोजीशन से हिल सकता है. सो इन एनी केस दोनों चीज़ों को टच नहीं होना चाहिए. देन वाइब्रेटर शुड नेवर बी केप्ट रनिंग फॉर लॉन्ग व्हेन इट इज़ नॉट इन कॉन्क्रीट. उसको खाली ही वाइब्रेट नहीं होने देना है, कॉन्क्रीट के अंदर जाएगा तभी वो वाइब्रेट करेगा. देन द ट्यूब शुड बी केप्ट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. सो ये कुछ प्रिकॉशंस थे. देन मेथड्स ऑफ कॉन्क्रीट, फॉर्म वाइब्रेटर और एक्सटर्नल वाइब्रेटर. सो दीज वाइब्रेटर्स आर क्लैम्ड ऑन द साइड ऑफ फॉर्म वर्क. दीज वाइब्रेटर्स आर यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट व्हेन इंटरनल वाइब्रेटर cannot be used, such as for very heavily reinforced or very narrow sections or precast units, etc. In such conditions, vibrations is applied through formwork by clamping these vibrations on the shuttering. Form vibrator means formwork vibrator. तो ये formwork vibration मतलब क्या है, डायरेक्टली वाइब्रेटर जो है वो formwork को ही अटैच किया जाता है. हेवीली रेनफोर्स कंक्रीट के लिए यूज़ होता है या नैरो सेक्शंस के लिए, जहाँ पर नीडल वाइब्रेटर या कोई और वाइब्रेटर यूज़ नहीं किया जा सकता. देन वाइब्रेटिंग टेबल्स, तो ये भी एक एक्सटर्नल है और सूटेबल है प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए. तो रिलायबल मीन्स ऑफ कंपैक्शन फॉर प्रीकास्ट कंक्रीट एंड इट हैज़ एडवांटेज ऑफ ऑफरिंग यूनिफॉर्म वाइब्रेशन. यूनिफॉर्म वाइब्रेशन देता है टेबल वाइब्रेटर. देन सरफेस वाइब्रेटर, तो ये जो वाइब्रेटर है ये कंक्रीट के टॉप सरफेस पे रखा जाता है और कंक्रीट को कॉम्पैक्ट किया जाता है. वाइड सरफेस जैसे डैम हो गया, स्लैब्स हो गए, और थिक सेक्शन के लिए ये सरफेस वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है, रोड सरफेस फ्लोर्स के लिए. देन कॉम्पैक्शन बाय प्रेशर एंड जॉल्टिंग. सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर कॉम्पैक्टिंग ड्राई कंक्रीट, हॉलो ब्लॉक्स, कैविटी ब्लॉक्स और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स के लिए ये प्रेशर एंड जॉल्टिंग मेथड यूज़ की जाती है. तो stiff concrete is vibrated, pressed and also jolted. Then methods of compaction by spinning. So recent methods of compaction of concrete है. This method of compaction is employed for the production of concrete pipes. When plastic pipe concrete is spun at very high speed,
इट गेट्स कॉम्पैक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कॉम्पैक्शन होता है. सो इट इज़ कॉम्पैक्शन बाय स्पिनिंग. Then vibratory rollers. So all of you know what are rollers, road rollers. So they while compacting they also vibrates. So compaction of very dry and lean concrete by vibrating roller is one of the recent development. Concrete compacted by this method is known as roller compaction concrete. This method of concrete compaction was developed in Japan and spread to USA and other countries mainly for the construction of dams and pavements. पेवमेंट्स और डैम्स के लिए ये वाइब्रेटरी रोलर्स ही यूज़ होते हैं. देन समरी. सो व्हाट वी हैव सीन टुडे: कंपैक्शन पर्पस मेथड्स, देन वाइब्रेटर्स टाइप्स एंड सूटेबिलिटी. देन असाइनमेंट क्वेश्चंस. स्टेट द केयर टू बी टेकन ड्यूरिंग कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट. स्टेट एनी एडवांटेजेस ऑफ कंपैक्शन यूजिंग vibrator. Then state different types of vibrators and situation they are used. So this was about today's lecture. Thank you.